फिल्म जो है वो डायरेक्टर का मीडियम होता है, क्योंकि डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप, और थिएटर जो है वो एक्टर का मीडियम होता है, क्योंकि आपको कितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाए, जब आप स्टेज पे आ जाते हैं तो यूर योर ओन मास्टर। इसी तरह से OTT के लिए और टेलीविज़न के लिए द राइटर इज़ किंग। तो राइटर जो है डेफिनेटली बाप होता है। आपके जो को एक्टर्स हैं वो आपके एक बहुत नेसेसरी और इम्पोर्टेंट फॉइल्स हैं, क्योंकि एक्टिंग इज़ अबाउट रिएक्टिंग, and when you see that your co-star is saying the truth, is speaking the truth, it becomes so much more easy for you to react and react truthfully. देखिए, जो लोग बोलते हैं कि नहीं feminism is hating men, they don't have any understanding of it, and it comes from a period when the feminist movement started. In order to be noticed, they had to do dramatic things like bra burning and make anti men statements etc. मगर वो तो सिर्फ एक धमाका क्रिएट करने के लिए था, उससे बहुत ज़्यादा हम लोग बढ़ गए हैं। Feminism is about creating opportunity for women, our voices being heard, for us to be able to kind of move forward in terms of the path that has been created by women before us. I think it's also to recognize that you don't need to bring another gender down in order for us That's right. to be That's the given main a platform. डब्बा काटल मुझे 2 साल पहले बस घर पे इट वाज नॉक नॉक और डब्बा काटल वाज देयर, और शबाना आज़मी मैम के साथ मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी सेकंड या थर्ड इनिंग्स में खड़ी रहूँगी। सो एक्चुअली एक्टिंग विद हर इज़ अ रीडिफाइनिंग मोमेंट फॉर मी। शी इज़ माय हीरो आई थिंक। मैम, मार्केट आपका, माल आपका, मैजिक आप सबका, और मज़े हम सब ने लिए। अच्छी बात है, गुड। So welcome, and it's an honor to have you guys here after a fantastic series. Normally तो हम we do interviews before a project, but very rarely we do interviews after a project, so that we have lot to talk, and that's a proof that the series is a success. और शुक्र है कि आपने देख लिया है, मैंने तो फिर और आपने पसंद किया। मैंने पहले दिन ही देख लिया। So how does it feel, ma'am, when it's an all women series? Women power को दिखाती है series. It's I wrote that headline also, and we'll discuss that कि कैसे कैसे मुझे वो feel हुआ. So how does it feel जब इस तरह की कोई चीज़ आती है and it becomes successful? It's trending #1 on Netflix, and people are like giving very positive comments, which is very difficult in today's era to get so much of positive feedback. मुझे लगता है इस सवाल का जवाब पहले जो है शिबानी को देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने क्रिएट किया ना, पूरा आइडिया इन्हीं का था। No, I mean, it's definitely a good feeling. I think it's also a great feeling to talk about the show, like you said, after people have seen it, and they're able to react to it as well. Because before the show, there's a lot of anticipation, there's a lot of anxiety. But I think once it's released and once people are appreciating it, it's a lot lighter for us to be able to enjoy the moment and just share, the joy of watching it with you. I think your review was the first one that I had read on the day that I was waiting for the reviews very, very nervously. And I think after the first line of your review, I think I was finally able to breathe after waiting 48 hours for those reviews to come in. Because I knew that, you had given it such a positive review that I thought, okay, there must be other people out there that agree with you. It can't all be bad, which is great. But it's a good feeling. It's definitely a good feeling. We've put so much work into this. And I think the great thing about this is that the effort that we have made with female characters, with the male characters, with where we've taken the show, are the things that people are noticing. Everything that we specifically wanted people to recognize, they have recognized. So it's not just, oh, this is a fun show and this is a fun ride, but the fact that people are saying these female characters have depth, they have substance. The male characters lend themselves to the script in a very positive and supportive way is also really nice, because we really thought them through as well. We didn't want them to just push this narrative of patriarchy and just be there, to
give the women something to fight about. We wanted them to also, we wanted to think about them. We wanted to think about everybody as people. You know, that was the whole point of creating this story, was to give proper weight to both genders. One more question to you. I thought कि इसके बाद I'll come to you. Recently, one film is doing very well, Super Boys of Malegaon. You are associated with that also. Farhan has produced, and one dialogue is very viral. Writer बाप होता है. But after seeing to this, because you have led to writer माई बाप होता है यही बस. आमतौर पे होता है ऐसे कि बहू जो है सास को ऐसा करती, मैं यहाँ ऐसा कर रही हूँ, तो वो सवाल का जवाब ऑलरेडी हो गया. And when you have Shabana ma'am, Jyotika, such senior actresses and legends, then how you manage to, you know, give proper space to each and every character? This is I was very much impressed by the fact that each and every character has a depth, even if it's the smaller one. Gajraj Rao's character, I mean, he's a male, but वो जिस तरीके से वो he has acted and you have written that's brilliant. Well, I think it starts when you understand and value that each character brings something to the table. Each character contributes something to your overall story that is incredibly powerful and important. Whether they're main characters or supporting characters, they all play a part. And this is not one of those stories where there's a female lead, there's a male lead, and everybody else is kind of here or there. Every single person in this script, we have looked at backstory, we have looked at what their family situations may have been like, even if we didn't show it. Because when you are talking about an ensemble cast, you're talking about a story that moves forward because of these very people in this housing society and this pharmaceutical company. So you have to give everybody the weight that they deserve. And also, when you're creating stories that have an ensemble cast, you have to be able to give the actors something to work with. You know, they're going to ask questions. What is my part here? What am I doing here? What am I feeling here? Where am I going? And you need to have answers to those questions. And so it's especially important when you have a cast of many to really think through where everybody is starting, where they're going, and what their contribution to the story is. And each of them is incredibly important to us. Jyotika ma'am, how does OTT success feels? OTT की कोई थिएटर की सक्सेस एक अलग होती है, वहाँ पे तालियां हैं, सीटियां हैं, बट OTT में लोग घर बैठ के देख रहे हैं, अपने कंफर्ट के हिसाब से देख रहे हैं. आपको सोशल मीडिया पे या तो पता चल रहा है, या फिर अगर OTT प्लेटफॉर्म कोई डाटा बता रहा है तो उससे पता चल रहा है. तो OTT की जो सक्सेस होती है, जैसे इसको पिछले 4-5 दिन में हम देख रहे हैं, बड़े सारे पॉजिटिव रिव्यूज, कमेंट्स. आई थिंक ऑडियंस के कमेंट्स मुझे लगता है ज़्यादा मैटर करते हैं रिव्यूज से. सभी के फैमिली के सब फ़ोन भर जाता है. जब फ़ोन पे सबके कमेंट्स आने लगता है, आपको पता है सक्सेस है, चाहे थिएटर में हो या OTT पे हो. बट डेफिनेटली OTT की रीच बहुत लार्ज है. लार्ज एटलीस्ट इन द फर्स्ट फ्यू वीक्स, मतलब सभी देख रहे हैं अपने घरों के टेलीविज़न पर. तो आई थिंक ऑल्सो इंडिया के कितने सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर OTT ही देख रहे हैं. सो यहाँ की ऑडियंस बहुत ज़्यादा लार्ज है. तो डेफिनेटली फ़ोन से ही अब मैसेजेस में ही पता लग जाता है कि कितनी बड़ी सक्सेस है. एंड यू एन्जॉय द सेम वे. तो सेम एन्जॉयमेंट होती है मुझे लगता है थिएटर और OTT में. जी मैम, अमित, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो जो सवाल आपने शिवानी से कहा था, वो मेरा मानना है कि देखिए, फिल्म जो है वो डायरेक्टर का मीडियम होता है, क्योंकि डायरेक्टर इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप, और थिएटर जो है वो एक्टर का मीडियम होता है. क्योंकि आपको कितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाए, जब हम स्टेज पे आ जाते हैं तो योर ओन मास्टर. इसी तरह से OTT के लिए और टेलीविज़न के लिए द राइटर इज़ किंग. तो राइटर जो है डेफिनेटली बाप होता है, क्योंकि उसके पास एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द प्लॉट इज़. और मुझे लगता है इसकी जो सबसे अच्छी बात है कि एक इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट है, पीपल हु आर डीलिंग with drugs and a pharmaceutical company that gets established very quickly. फिर उसके बाद आप जो है अलग अलग कहानियों में ज़रूर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है. एक क्वेश्चन मैम, 50 years
से यू आर एंटरटेनिंग अस, एंड आई थिंक इसके लिए एक आई मीन बहुत सारी आपकी फिल्में हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। आई मीन आपके साथ मुझे लगता है बात करने बैठे घंटों कम पड़ जाएंगे। मैं एक आपको किस्सा सुनाना चाहूँगा। जावेद साहब पिछले साल आए, मतलब आई वॉज फॉर्चुनेट कि उनका इंटरव्यू करने का मुझे मौका मिला। तो टेबल पे ये बॉटल रखी थी, तो इस सेट की मैंने कहा सर बॉटल नीचे रख देते हैं, वो ब्रांड दिखेगा तो गंदा लगेगा। कहते अच्छा 10 मिनट ही तो बात करेंगे ना, 10 मिनट ही तो बात करेंगे ना, तो 10 मिनट बाद मैं पानी पी लूँगा। तो देन हमारी बातचीत चली 1 घंटा 10 मिनट एंड फिर मैंने ही उसको, बिकॉज उनसे बात करना इज़ लाइक इतने सारे किस्से, इतनी सारी कहानियाँ वो सब निकली, सबकी बातें हुई। थिंक लॉट ऑफ लव लेटर्स विच फरहान हैज़ रिटन, दे आर रिटन बाय जावेद साहब। तो ही रिवील्ड ऑन द शो कि उसने लिखवाए थे मुझसे। yes, it's in his book also. वो किस्सा उन्होंने अपनी बुक में भी लिखा है। मगर फरहान के बारे में नहीं लिखा था, अपने एक दोस्त के बारे में जो नहीं स्कूल में। आई आस्क्ड हिम, मैंने स्पेसिफिकली पूछा कि सर दोस्त वाला किस्सा तो था, बट आस्क की मैंने कहा सर फरहान के लिए कभी लिखे हैं? कह रहे हाँ आप कुछ लिखे हैं, अब ज्यादा नहीं बता सकते। ही सेड। तो my question to you is, after 50 years सक्सेस कितना मैटर करती है या कितना अफेक्ट करती है आपको? देखिए 50 years is a long time, and in my case I've been very fortunate that I've been at the right place at the right time. और जितने मोड़ आए हैं पिछले 50 सालों में, उसमें हर मोड़ पर मैं थी, तो अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझती हूँ। मगर आपका जो डेफिनेशन है सक्सेस का, वो बार बार बदलता रहता है। देखिए जब आप शुरू करते हैं अपना करियर, तो बहुत ज़रूरी होता है कि आपको क्रिटिकल अक्लेम तो मिले ही, लेकिन बॉक्स ऑफिस अक्लेम भी मिलना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो उस वक्त आप जो हैं अपने करियर चॉइसेस करते हैं कि अरे ये बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, ये बड़ा हीरो है, इसके आगे काम करना अच्छा होगा। फिर उसके बाद स्लोली आपके दर्जे बदल जाते हैं। आज के दिन में मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे साल बाद काम करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, उसको सक्सेस कह सकते हैं। कि आप किसी न किसी तरह से एक अपॉर्चुनिटी, तो ऐसा भी हो सकता है कि 50 साल बाद आप समझेंगे कि अच्छा जो सेफ हेवन में आप हैं, आपको पता है कि ये आप कर सकते हैं, उससे अपने आप को बाहर निकालना और उसको आप एक्सप्लोर करना। उसमें होता यह है कि यू कैन बी अफ्रेड ऑफ फेलियर। आपको ऐसा लग सकता है कि भैया ये तो मेरे सेफ हेवन में नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है कि यू रिस्क फेलियर। और उसमें ऐसा हो सकता है कि कभी आप कामयाब हो सकते हैं, कभी आप नाकाम होंगे, लेकिन कम से कम आप अपने सेफ्टी नेट से बाहर तो निकले। ये मैं समझती हूँ कि माई डेफिनेशन ऑफ सक्सेस वुड बी। सुपर। आई थिंक ये बहुत कम लोग हमें समझा पाते हैं कि सक्सेस का मतलब क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द यंगेस्ट फैन। आप ही से शुरू करते हैं। व्हाट इज योर क्वेश्चन? नहीं खुशी यंगेस्ट वो है। आप अपना नाम तो बताओ बेटा। Hi, my name is Yashika Arora, ओके। and I am learning acting from Bhavra Studio. So my question is, आपकी फैमिली में तो सारे लोग एक्टर हैं, तो फिर जब भी आप डिनर टेबल में बैठते तो ये फिल्म एंड एड्स की बातें होती है या फिर कोई दूसरा टॉपिक भी है? सबसे ज़्यादा तो खाने की बात होती है। खाना, ये खाना अच्छा है, वो खाना अच्छा, अब रात में क्या खाना होगा, ऑब्सेस्ड विद खाना। लेकिन जाहिर है कि सब लोग एक ही इंटरेस्ट में अगर उनके हैं आर्टिस्ट होने के नाते, तो बहुत सारी बातें बिल्कुल नेचुरली आती हैं। उसमें द क्वालिटी ऑफ सिनेमा, वेयर वी आर गोइंग टुडे, राइटिंग कैसी होनी चाहिए, एक्टिंग कैसी होनी, उसका तो डेफिनेटली एक इन्फ्लुएंस रहता है। ये क्वेश्चन बेटा आपको बताया किसने था? आई एम क्यूरियस। सर मैंने खुद सोचा था। ओह स्वीट। Great question. नेक्स्ट खुशी। हाँ अमिता जी प्लीज। शी इज अ वेरी सीनियर एक्ट्रेस मैम। शी जी। ऑलवेज Good कम्स evening, एंड everybody. आस्क्स वेरी गुड इवनिंग। I'm also from the same batch, Bhavra Sector Studios. I'm also learning.
एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वुमेंस डे आ रहा है एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू मीट ऑल ऑफ यू. मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट हो गया आप लोगों से मिलना. थैंक यू. मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे आप नए एक्टर्स के साथ आप सभी काम करते हैं, तो व्हाट इज़ द प्रिपरेशन, कैसे आप लोग अपने आप को रेडी करते हैं कि इनके साथ हम फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं या हमने इनके साथ काम नहीं भी किया हुआ या किया भी हुआ है तो कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं कभी कभी, या किसी के साथ नहीं अनबन हो जाती है, या इट्स ऑलवेज कंपैटिबिलिटी इज ऑलवेज देयर? देखिए, जब आप फिल्म की बात करते हैं तो वो इतना कोलैबोरेटिव मीडियम होता है, आप कभी खुद में नहीं कर सकते काम. Okay. आपके जो को एक्टर्स हैं वो आपके एक बहुत नेसेसरी और इम्पोर्टेंट फॉइल्स हैं, क्योंकि एक्टिंग इज़ अबाउट रिएक्टिंग. And when you see that your co-star is saying the truth, is speaking the truth, it becomes so much more easy for you to react and react truthfully. तो उसमें मैं इस डब्बा काटल में ख़ास तौर से इसलिए भी बहुत लकी रही हूँ कि जितने भी एक्टर्स हैं वो सब के सब इंतहाई टैलेंटेड हैं. तो आप इस कॉन्फिडेंस से फिर आगे जाते हैं कि एक्सपीरियंस वाइज किसी के पास ज़्यादा होगा, किसी के पास कम होगा, लेकिन हैं बेसिकली बहुत अच्छे. So everybody is on almost at the same level. Well, not necessarily in the same level as experience, लेकिन उनमें एक ज्वाला है कि हम जो हैं वो ट्रूथ को किस तरह से कैप्चर कर सकते हैं. Okay. Thanks a lot and all the very best for your Dabba Katal. Thank you. very much. Thank you. Thank you. Next question, please. Hello everyone. I'm Namrita from Bhavras. और सारे भावरस वाले आ रहे हैं. yeah, पहले आ गया. हम लोग भावरस से दूसरों ही को आए भी हैं मौका सब. दिया जाए. Please ask, please ask. सो मैम, मैंने अभी जस्ट ज्वाइन किया भावरस, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे. तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ज्योतिका मैम एंड शबाना मैम दोनों से, मैम आप मुझे ये बता सकते हैं कि जब आप कोई भी करेक्टर करते हैं उसमें आप इमोशंस डालते हैं, क्योंकि वो करेक्टर बिल्कुल डिफरेंट होता है, बट आपका जो रियल में आप हैं, आपका अगर बिल्कुल डिफरेंट आपसे करेक्टर मिलता है तो आप किस तरह से उसमें इमोशंस को इनकलकेट करते हैं, मतलब किस तरह से आप उसको प्रेजेंट करते हैं? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है जो आपने पूछा है, क्योंकि एक्टर जो है वो अपना इंस्ट्रूमेंट खुद होता है. उसकी सोच, उसकी समझ, उसका एक्सपीरियंस, उसकी एजिलिटी ऑफ बॉडी, इन सब चीज़ों की वजह से कैन गिव हर बेस्ट. अब अगर आप जैसे म्यूजिशियन को देखें तो पंडित रविशंकर के बारे में आप देखें तो द डेक्सटेरिटी ऑफ हिज फिंगर्स इज अनपैरेलल्ड, लेकिन द इंस्ट्रूमेंट हैज़ टू बी फाइनली ट्यून्ड. इफ द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट ट्यून्ड, कहीं तो आपको किसी अदर फैक्टर पर डिपेंड करना पड़ता है. एक्टर के इसलिए मैं समझती हूँ कि एक्टर का जो रिसोर्स बेस है वो ज़िंदगी इटसेल्फ है. उस ज़िंदगी को किस तरह से आप एक्सपीरियंस करते हैं और आप किस तरह से अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, उन चीज़ों में इंटरेस्ट पैदा करते हैं जो आपको बोरियत भी हो सकती है. कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे यार, हमको क्लासिकल म्यूज़िक से कोई दिलचस्पी नहीं है, हमको जो है आर्ट एग्जीबिशन से कोई दिलचस्पी नहीं है. मगर मैं ये एडवाइस दूँगी यंग एक्टर्स को, एस्पायरिंग एक्टर्स को, कि आप बोर हों तो क्या, आप एक्सपोजर तो करिए. अगर आप महदूद होके रह जाएंगे और जो चीज़ें आपको पसंद है उसी में आप इन्वॉल्व रहेंगे तो आपका एक्सपीरियंस, लाइफ का एक्सपीरियंस कैसे बनेगा. तो जैसे कि मैं जब कोई कैरेक्टर करती हूँ तो उस कैरेक्टर की जो ज़िंदगी है वो मेरे एक्सपीरियंस का हिस्सा बन जाती है, लेकिन इसी तरह से मेरा जितना एक्सपीरियंस है उस कैरेक्टर को कुछ देता है. सो इट इज, डोंट यू थिंक ज्योतिका, दैट्स ट्रू? हाँ जी, बिल्कुल. आई थिंक उनके साथ इंटरेक्शन भी करना और समझना. जैसे फॉर एग्जांपल वरुणा थी, मुझे मेरी काफ़ी फ्रेंड्स की स्टोरी वरुणा में दिखी, अलग तरीके से, पर स्टोरीज दिखी. तो मैंने काफ़ी अपने फ्रेंड्स को कॉपी भी किया है, वेरी क्लोज फ्रेंड्स. तो क्योंकि मैं देखती हूँ कि वो बाहर ऐसे एक नकाब पहन के आते हैं पर उनकी आंखें सच्चाई बात बोलती है, तो वी कैन सी थ्रू. तो आई थिंक एक्सपीरियंसेस, एज मैम ने कहा, ज़िंदगी सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है. थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल सजेशंस. थैंक यू.
Shivani, one question is कि which was the toughest character to write in Dabba Katil? I would probably say Varuna was the toughest character to write. I think her journey was probably the most difficult for us to justify. Why a woman who is, previously working for Viva Life in one of the top positions, who now has her own business, why she has resorted to doing this type of work is something that, and we had to justify it very quickly. So it was very layered for us, and there was very little time to show the layers. And I think that Jyotika did a really beautiful job in bringing that out. Because sometimes there's very little to work with, and not everything is in dialogue. You have to leave some room for other things. And I think that's what Jyotika managed to tap into so beautifully and kind of show us what the turmoil that she was going through and why she arrived at this decision without giving her these lines that say, what do I do and how will and I need to find something. It wasn't verbose, it was internal, and she really brought it through. But hers was the most difficult character to kind of justify, and the one that we probably had to we argued about the most. Is it enough? Is it too much? So that was definitely the one. जैसा आपने भी कहा कि आपने अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स से लिया, सो आई थिंक वरुणा का जिस तरह का किरदार है उस तरह के किरदार हमारी सोसाइटी में हमें बहुत सारे मिल जाते हैं, जहाँ पे विमेन अपना पार्टनर अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वो किसी चीज़ को पूरा नहीं कर पाती हैं. सो आई थिंक मुझे इसमें ऐसा लगा कि एक मैसेज ये भी देने की कोशिश की गई कि भाई इवन इफ़ यू आर सक्सेसफुल देन सपोर्ट योर पार्टनर ऑल्सो, कि इफ़ शी वांट टू डू समथिंग. आई थिंक मतलब मैंने इस किरदार से जो है मुझे जो लर्निंग मिली, बिकॉज आई ट्राई कि क्योंकि मैं फिल्म्स बहुत देखता हूँ, मतलब बहुत सीरीज देखता हूँ. तो आप अपने पार्टनर के साथ ऐसा करेंगे? बिल्कुल नहीं. नहीं करोगे? नहीं, ऑब्वियसली आई विल सपोर्ट. But you'll also notice even with Varuna and Shankar and the conflict that they go through also isn't something that is gender based. It's a relationship based thing. So whatever jealousy he experiences, whatever conflict they're having, he's not saying that you should stay at home. He's not saying that you shouldn't work. It's almost like this underlying rivalry in a sense that happens that has nothing to do with gender actually. It's just to do with two successful people in their own right who kind of step up to the plate at different times, and when one can't handle the success of the other, it becomes a bit of a problem. So we've not made a point to kind of underline that it's because she's a woman. It's just a relationship. But there's one line that I find very telling. When he looks at his wife and finds that she is laughing with another friend of his, और आपको लगता है कि is he sort of suspecting what is he doing? That would be the natural trajectory. And then he looks at her and says, you should laugh more often. पूरी हिस्ट्री एक डायलॉग में पूरी हिस्ट्री समझ में आ जाती है. Very nice. That is the power of writing. And credit goes to you. You and your team. The writers of the show, Vishnu Menon and Bhavna Kher, yes. Next. Hello ma'am, my name is Khushi and my question is from all three of you. Since we're talking about women और Women's Day भी आ रहा है, तो my question is that what is your take on feminism and what would you like to say to people who think that feminism is anti-men? I think feminism is just equality. That's what we are asking for. That it's not competing. I think Shabana ma'am इसको बहुत खूबसूरत शब्दों में बोलेंगी, but I think it's all about equality in short. देखिए जो लोग बोलते हैं कि नहीं feminism is hating men, they don't have any understanding of it, and it comes from a period when the feminist movement started. In order to be noticed, they had to do dramatic things like bra burning and make anti-men statements etc. मगर वो तो सिर्फ एक धमाका क्रिएट करने के लिए था. उससे बहुत ज़्यादा हम लोग बढ़ गए हैं. और क्या कह रहे हैं कि देखिए हम जो हैं दुनिया के 50% लोग हैं, तो हमको
वही अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि जो मैं यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट इक्वल राइट्स। तो मेरी तो समझ में नहीं आता कि औरतें ये कैसे समझ सकती हैं, उनको इस बात में क्यों मजा आता है ये कहने के लिए कि आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट। व्हाई आर यू डिफेंसिव अबाउट समथिंग व्हिच इज द ओनली वे इट शुड बी? Okay, thank you. Shivani, your views on this? No, I agree. I think you know, feminism is about creating opportunity for women, our voices being heard, for us to be able to kind of move forward in terms of the path that has been created by women before us. I think it's also to recognize that you don't need to bring another gender down in order for us That's right. to be That's the given main a thing. platform. And I think women and men both together need to work towards creating an equal platform for everybody. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यू नो फेमिनिज्म नीड्स टू रीडिफाइन द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी। आमतौर पे होता ही है कि जब एक जेंडर आगे बढ़ता है तो वो ओप्रेस करता है दूसरे जेंडर को, चाहे इट्स मेन डूइंग इट टू वुमेन। नाउ इफ वुमेन आल्सो गेट अप एंड डू द सेम थिंग to men, then the world hasn't changed at all. So you need to redefine equality so that it becomes about sharing, not about seizing one on at the cost of the other. Okay, thank you. मुझे अपना आंसर बहुत अच्छा लगा, तो इस बात पे ताली। एक क्वेश्चन मेरा उससे पहले, इसका सीजन 2 कब आ रहा है मैम, ये बताइए पहले। वो क्वेश्चन यहाँ पे There are comments, मतलब I mean I have मेरी खुद भी दिलचस्पी, even I am interested, but there are comments, people are asking when is season 2 coming? You know, it's such a crazy question to answer so close to the release of season 1, because we couldn't have hoped for anything more than people watching the first season and already wanting the second. So it's such a great feeling when you worked so hard on the first season. And obviously we've left it open, so you know that there's more to come. So we're very excited that you're looking forward to it. I will get back to you on the rest of the... Because I think now all the characters are established. Yes. Now I think in That second is a season, very good... That's right. That is a very good... from the first episode Observation. only, आप फोन किया था जो आपने लास्ट में, आई थिंक कुछ अब स्टार्टिंग से ही बॉम्बार्डिंग शुरू होने वाली है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लिलेट दुबे जो कि बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा कि मुझे बहुत अच्छा लगा डब्बा कातिल, प्लीज़ अपनी बहू से कहो कि मुझे मार दिया ये अच्छी बात नहीं है, मुझे फ्लैशबैक में या कहीं ना कहीं ज़रूर डाल दो वापस। तो when the actors enjoy themselves, that is so wonderful. I think that's the thing that's just made me the happiest, is that each and every one of them has enjoyed the experience so much. You know, and that's such a good feeling. Like when people are excited, and you know, people keep saying, "Oh, your show, your show." It's our show now. Yes. You know, and the fact that they enjoyed it and want to do more and want to be a part, it's like it's more than what we could have asked for. आई तो इवन रोड की अगर इतने पावरफुल एक्टर्स हैं और उसके बाद भी बाकी के लोग उनको मौका मिला, अब स्क्रीन स्पेस मिला और इतना स्क्रीन स्पेस मिला कि वो रजिस्टर हुए बहुत अच्छे से, सो आई थिंक दैट इज द सक्सेस ऑफ अ शो, बिकॉज 8 एपिसोड इज नॉट ईजी। आप watching 8 episodes in one go is never easy. Some web series I took 8 days to watch for 8 episodes. They are so boring. इतने सारे लोगों ने मुझे बोला कि we watched it, we binged watched it. Yes, yes, So that comes a lot, and that's like really really nice. वो फिर क्यूरियोसिटी जाग जाती है ना मैम कि अब ये हुआ तो अब इसके बाद क्या होना है, so if every episode has a curiosity, so you'll watch it in one go. चलिए लेट नेक्स्ट जल्दी से। हेलो एवरीवन, ज्योतिका मैम, हाउ आर यू? मेरा आप ही से क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम जुविका। आई वांटेड टू नो कि आपके करियर में अभी तक कोई ऐसा डिफाइनिंग मोमेंट आया है वेयर यू फील दैट यू हैव फाइनली गॉट द फेम दैट यू डिजर्व, या फिर यू स्टिल थिंक कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में पोटेंशियल है दैट यू बीट योर ओन सेल्फ?
But she is a very successful actress. I don't think she's looking for it. कब Yeah. ऐसा लगा था कि when you got Yes. success? बहुत सारे डिफाइनिंग मोमेंट्स थे। पहले तो मेरी शादी हो गई थी जब आई वाज 27। उसके बाद जब मैंने री एंट्री की एट 34 तो मुझे लगा कि अभी तो और भी अच्छी स्क्रिप्ट्स आ रही है। वो मेरे लिए एक बहुत रीडिफाइनिंग मोमेंट था बिकॉज आई फेल कि चलो इतने 10 सालों के काम को अब जाके रिस्पेक्ट मिल रहा है, क्योंकि जैसे मैम ने बताया था कि पहले हम बड़ी पिक्चरें साइन करते हैं और क्वाइट अ फ्यू एजेंडाज होते हैं काम करने के पीछे, तो वो एक रीडिफाइनिंग मोमेंट था। अब बॉलीवुड में वापस आई हूँ 27 साल के बाद, दैट इज़ अगेन अ रीडिफाइनिंग मोमेंट के सारे लैंग्वेजेस साथ में आ रहे हैं एंड वी आर जस्ट इट्स फाइनली बिकम एज वी से पैन इंडिया के सारे टैलेंट साथ में आ रहे हैं। और डब्बा काटल मुझे 2 साल पहले बस घर पे इट वाज नॉक नॉक और डब्बा काटल वाज देयर और शबाना आज़मी मैम के साथ मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी सेकंड या थर्ड इनिंग्स में खड़ी रहूँगी। सो एक्चुअली एक्टिंग विद हर इज़ अ रीडिफाइनिंग मोमेंट फॉर मी। शी इज़ माई हीरो आई थिंक। ये तो I totally agree and I thank शिवानी for this कि आपकी thank her वजह too. से हमको भी मौका मिला उनसे मिलने का एंड बात करने का एंड आई थिंक वी ऑल आर प्रिविलेज एंड डब्बा काटल की वजह से एंड नेटफ्लिक्स को भी थैंक यू कि उनकी वजह से ही ये सब पॉसिबल हो पाया। One line, she is my redefining moment. You are, ma'am. Great respect. That's really precious. थैंक यू मैम। मैम लास्टली होली आने वाली है एंड आपकी होली पार्टीज जो हैं वो टॉक ऑफ द टाउन रहती हैं, तो इस बार क्या कुछ खास? अब देखिए असल में क्या हो गया कि होली हमारे घर से हमारे हाथों से निकल गई है। अब वो जो है एक पब्लिक इवेंट हो गया, तो हम बुलाते कुछ 50 लोगों को हैं और 150 200 कुछ भी और फिर लोग आके हमसे कहते हैं कि हम जो है आपकी होली में आना चाहते हैं, होली में आना चाहिए। ये जो है हमारे घर में अब्बा ने स्टार्ट किया था। कैफ़ी साहब जो हैं होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस सब त्यौहार मनाते आए हैं और इसका रिलीजन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये जो है हमारा जो कंपोजिट कल्चर है इंडिया का, उसका एक स्ट्रेन है। तो अब देखिए क्या होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। मैं कल हम कोलकाता में थे एंड हमारे ड्राइवर साहब ने रोज़ा रखा हुआ था, तो हमने उनको कहा कि आप रोज़ा खोलिए, मेरी आदत है बोलने, मैंने कहा और मेरे लिए भी खजूर लाइएगा। तो रात को जब हम गए तो बाकायदा वो एक बॉक्स में अच्छे से कि ये सर सऊदी के हैं, अरे मैंने कहा मैंने तो आपसे वैसे ही कहा था। तो अगली बार रोज़ा रख लीजिए ना, ताकि आपको वो जो है सवाब मिल जाए। हमारे यहाँ पहले हमारे एक पेइंग गेस्ट हुआ करते थे, तो मैं जब हम छोटे थे, मैं और मेरा भाई रोज शाम को हम उनके साथ रोज़ा खोलते थे, रखते नहीं थे, सिर्फ खोलते थे और ईद पे उनके साथ हम जाते थे, मस्जिद जाते थे। तो ये हमारा ट्रेडिशन था। तो वो हम शाम का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते थे कि भाई वो बहुत अच्छे से कायदे से सारी चीज़ों को लगाते थे कि हम खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। आई थिंक यही हमारी ब्यूटी है एंड आई थिंक पैन इंडिया, इसी को पैन इंडिया कहते हैं। एंड हाउ इज़ योर होली गोइंग टू बी? कैसे मनाते हो आप? पिछली बार तो मैं घर आए थे। हाँ, पिछली बार उनके घर थी और ये साल शायद बच्चों के साथ ही बिल्डिंग में, और मेरे हस्बैंड आए तो आए मद्रास से बिल्डिंग में, जस्ट विद रिलेटिव्स, घर में ही मनाते हैं। आपकी तो साथ में ही है, तो मतलब आंसर आई गया हमारे पास। सो बट सबसे बड़ा आंसर आपसे यही चाहिए जो आप जल्द से जल्द दें। When is season 2 coming? I'll wait for your post. You will be the first to know. Yes, I am. हाँ, मैं चाहूँगा और and तब भी I'll be the first one to review. Yes, you have to. That's a tradition now. Thank you so much. Thank you. It's a honor, pleasure आप लोगों का यहाँ आना और बात करना. I mean, I don't have words to thank you. Thank you And so much. Keep making good content. आप you produce films also and very impactful films. बहुत films देखता हूँ मैं, साउथ की भी and Malayalam films and every Tamil films I watch a lot. And ma'am, thank you so much for entertaining us. मतलब हम में से बहुत से लोगों की तो उतनी उम्र नहीं है जितने सालों से आप हमें एंटरटेन कर रही हैं। इस बात को इतना गहराई से बताने की जरूरत नहीं थी। आप इसको जो है बिल्कुल हाँ। But thank you so much and waiting for season 2 और hopefully season 2 रिलीज के बाद हम फिर से बैठेंगे। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.